So, very good evening, all the participants. Today, we will be sharing the allied laws, mixed allied laws, and we'll try to cover. Let us see how much we can cover. The first law to be covered is the Negotiable Instruments Act. And as you know, you are aware about the basics of Negotiable Instruments Act. There is an important case law on this Negotiable Instruments Act, which we read in IBC also, because it hits section 14. Why it hits section 14? Because as we know, section 14 talks of moratorium and it says that proceedings cannot be continued or initiated during CIRP period, right? That is in precise section 14. But in case of this P. Mohan Raj versus Shah brothers, Supreme Court held that moratorium bars continuation of section 138 proceedings against the corporate debtor only, right? And not against the signatories or directors. So, suppose because action is taken under section 138 both against the directors or signatories and the company also. Both are made parties, right? So, it says action against signatories or directors can continue, but you cannot take action against the company because these are two separate proceedings. So, if a director has signed a check, he may be held criminally liable. He may be subjected to imprisonment also, whatever are the penalties under the Negotiable Instruments Act, right? Another case is Arangappa versus Sri Mohan. It may not be in syllabus, but it is relevant here. It's also a Supreme Court judgment. And it says the presumption that a check was issued for a debt or liability is rebuttable, but the accused bears the initial burden to raise a probable defense. So it's because you may issue check for different purposes, right? Suppose you have issued a check as a gift, right? You want to make a gift and you have issued a check. You want to give loan to somebody, you have issued a check. But it is not towards any debt or liability. So this presumption that a check was issued for a debt or liability is rebuttable, but the accused bears the initial burden to raise a probable defense. The initial burden will be on the person who wrote the check that, my lord, I issued this check, definitely I admit, but it was for a gift or it was for advancing a loan. I did not take any loan. I did not incur any debt, right? So this presumption, initial presumption is to be rebutted by the person who wrote the check, right? Another case is Dashrath Roop Singh Rathore versus State of Maharashtra, and it says it had confined the jurisdiction to the Drawers Bank branch, right? But the parliament reversed this via the 2015 amendment. Now the pays collecting branch is the jurisdiction, right? Because the question of jurisdiction will also come in the Negotiable Instruments Act. Now, what are the recent amendments? There was an amendment in 2018 and it says they inserted section 143A and 148 to curb delay tactics, because once action is taken under 138, then naturally there is a delay tactic. So this section was inserted by this Negotiable Instruments Act, Amendment Act 2018, and they inserted section 143A and 148 to curb delay tactics. So it says there is a concept of interim compensation and a mandatory appeal deposit. So if the drawer of the check is asked to give some interim compensation and he has to mandatorily deposit an amount before going in for appeal, so naturally these delay tactics can be avoided. P. Mohan Raj versus Shah brothers is path. It clarified the moratorium's limited reach in section 138 matters. So, and 2025-26 proposals are there. These are not yet made a law. So there is a report of a bill on e-check or digital validation. It remains at proposal stage as of August 2026.
right? So this may not be in your syllabus. Now let us see the timelines, penalties and appeals. So Kajal Kiran ji, I hope I am audible to all. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Crystal clear, sir. So timelines. Now in the timelines, there is a demand notice to drawer. So first of all, whosoever has wrote the check, so you have to issue a demand notice, and it is to be issued within 30 days of the dishonor intimation. This is a very important section, and they may ask you question also, because before you issue this demand notice, you cannot take action, right? This is the first thing. So you have to issue a demand notice to the drawer, and it has to be issued within 30 days of the intimation which you receive from the bank. So 138 proviso talks of this. Another point is the drawer's cure period is after notice is 15 days from the receipt. So if you want to cure any defect, so you can take any action within 15 days from the receipt of the demand notice. Thereafter, the complaint filing starts. So that is within 1 month of the cause of action, and is condonable for sufficient causes. Now regarding appeal or suspension of sentence, it is conditional on 20% deposit. So if you want to file an appeal, naturally you have to deposit at least 20%. Regarding penalties, penalty sections are very important here. Section 138, imprisonment up to 2 years or fine up to twice the check amount or both. And section 143 talks of summary trial by JMFC or Metropolitan Magistrate. This is the ordinary procedure, right? So first class judicial magistrate or Metropolitan Magistrate. So they can do summary trial. Regarding appeals, section 142, subsection 2 says the jurisdiction is court where the check was presented for collection, post 2015 amendment. Section 143A talks of interim compensation up to 20% during the trial period. Section 148 talks of 20% deposit condition for suspension of sentence in appeal. And section 147 talks of that every offence under the act is compoundable at any stage, including appeal. Compoundable means that if you want to avoid imprisonment, you can pay a fine and you can get away with it, right? So imprisonment is not necessary, right? If you want to pay, you can pay and avoid the sentence, right? This is the meaning of compoundable. And it is compoundable at any stage, including appeal. Now, let us do a basic case study. So, Aditya Kumar ji, can you read it? आप पढ़ सकते हो यहाँ से? आदित्य कुमार जी, Sir, I can read, sir. आप पढ़ो मैडम. Yes, sir. हाँ. Facts, sir. Messrs. Sharda Traders supplied goods worth rupees 8 lakhs to Rohit Enterprises. The check issued in discharge was presented on 25th March and returned unpaid on 27th March, marked funds insufficient. Within how many days of receiving the dishonor intimation must the demand notice be issued under the proviso to section 138? The answer will be A, that is within 30 days. Within how many days of receipt of notice must the drawer pay to avoid the offense being deemed committed? The answer is B, 15 days. बिल्कुल सही. Next. What is the maximum term of imprisonment prescribed under section 138? The answer is C, 2 years. Very good. Under section 142 subclause 1 subclause B, within what period from the cause of action must the complaint be filed subject to condonation? The answer is within 1 month, D. हाँ, बिल्कुल ठीक है. तो फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर है. Yes, sir. ठीक है, ये आंसर दे दिए इसके. ठीक है, चलिए एक बार कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस पर और देख लेते हैं. एक बार पढ़ लीजिए नेक्स्ट केस स्टडी. Yes, sir. Kavita Although Textile. केस स्टडी may not come in the exam, but इससे क्या होता है, एग्जांपल से ना आपको फैक्ट्स क्लियर हो जाते हैं. मेन बात ये है.
और कई बार इसमें डीप बातें भी पूछ लेता है वो। अब वो आपसे थोड़ा सा डीप भी पूछ लेगा। मान लो भाई अगर छुट्टी है उस दिन, ठीक है, अब वो कहता है विद इन 1 मंथ, तो 1 मंथ वाला जो लास्ट डे उस दिन छुट्टी है तो क्या होगा, अगले दिन आप प्रेजेंट कर सकते हो, नेक्स्ट वर्किंग डे। देखो जो नॉर्मल लॉ है वो तो चलता ही चलता है साथ में। चलिए, यस यस प्लीज काजल जी Kavita पढ़िए। yes, sir. Kavita हम्म Textile Section 138 complaint against Nikhil fabricators ended in conviction. During the pendency of Nikhil's appeal, the parties settled and Nikhil paid the full amount plus compensation. Both now wish to compound the offense. हम्म Can offenses under the Act be compounded even though the CRPC does not ordinarily permit compounding of such offenses? The answer will be yes, the Act makes every offense under it compoundable, notwithstanding the CRPC. देखो इसमें जी हमें अंडरस्टैंड करने वाली क्या बात है कि ये सब जो एक्ट में प्रोसीडिंग चलती है, ये हमारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से चलती है। दो हमारे कोड है, एक सिविल प्रोसीजर कोड है और एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या कहता है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहता है कि नॉर्मली दी ऑफेंसेस आर नॉट कंपाउंडेबल। मतलब अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया तो ये नहीं कि आप कह दो जी पैसे ले लो और आप मुझे जेल मत भेजो, ठीक है। जैसे फॉरेन कंट्रीज में कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड मनी है, ठीक है। तो क्या होता है ब्लड मनी, क्या कॉन्सेप्ट है ब्लड मनी में? ये है कि आप मर्डर भी कर देते हो तो अभी आप पैसे दे करके छूट सकते हो। लेकिन यहां पर जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है वो लॉ मेकर समझते हैं इस बात को कि देखो भाई ठीक है, हो गया चेक बाउंस, अब आप पैसे देने को तैयार हो, आप फाइन भी देने को तैयार हो, तो ये नहीं कि जबरदस्ती आपको जेल भेजा ही जाएगा। तो मतलब ये कंपाउंडेबल है, ठीक है। नॉर्मल प्रिंसिपल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में क्या है कि कंपाउंडेबल नहीं है। यस प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। yes, sir. Can the offense be compounded even after an appeal against conviction is pending? Yes. B is the answer. Section 147 does not restrict the stage of compounding. तो किसी भी स्टेज पर कंपाउंडिंग पॉसिबल है, इवन एट अपील स्टेज। यस नेक्स्ट। Which document raises the statutory presumption of dishonor under Section 146? The answer is the bank slip or memo bearing the official dishonor mark. The answer देखिए is C. होता क्या है कि मान लीजिए आपका चेक डिसऑनर हो गया, उस पर डिफरेंट रिमार्क्स आ सकते हैं। ऐसा आ सकता है भाई जो ड्रॉर के सिग्नेचर है दे डू नॉट मैच। अगर ऐसा कोई कमेंट आ गया तो फिर आप 138 का ऑफेंस नहीं कर सकते, समझ रहे हो। जरूरी नहीं ना कि फंड्स इनसफिशिएंट वाला ही रिमार्क आए, कुछ और भी रिमार्क आ सकते हैं। मान लो चेक फट गया, उसकी डेट क्लियर नहीं है, पानी लग गया, है ना, म्यूटिलेटेड चेक हो गया, ड्रॉर के सिग्नेचर डिफरेंट है, तो इन ग्राउंड्स पे 138 वाला एक्शन आप नहीं ले पाओगे। क्या होना चाहिए उस पर? फंड्स इनसफिशिएंट। ठीक है, Yes, sir. चलिए। What is the ordinary trial procedure under Section 143 for Chapter 17 offenses? हम्म The answer is D. Summary trial by a judicial magistrate first class or हम्म metropolitan magistrate. हाँ, तो ये देखो इतनी बातें तो आपको याद कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, ये आंसर्स दे रखे हैं, ये हो ही गया, ये तो हो गया था ना हमारा, ये हमने कर लिया। Yes, yes, sir. हाँ, स्टैट्यूटरी नोटिस ये भी हो गया, ये तो नहीं हुआ मेरे ख्याल, हो गया ये। ठीक है, अच्छा अब इससे पहले कि हम दूसरे एक्ट पर चलें, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट से रिलेटेड। जैसा मैंने बताया, एक तो ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में ये पूछ लेता है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है वो कौन से सेक्शन में डिफाइंड है। ठीक है, तो इतना तो याद होना चाहिए। नॉर्मली क्वेश्चन सेक्शंस पे नहीं पूछता, लेकिन इसमें पूछ लेता है खास तौर से। क्यों? क्योंकि आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिफाइंड है सेक्शन 13 में। ठीक है, सेक्शन 13(1) कहता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस ए प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक पेबल आइदर टू ऑर्डर और टू बेयर, है ना। तो ये जो है तीनों चीजें इसके अंदर शामिल है। चलिए नेक्स्ट लॉ देखते हैं हम लोग, इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या बोलता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बेसिकली
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपको पढ़ना है किसके साथ में मिला करके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है, ये दोनों एक्ट भी आप, ये तीनों एक्ट को साथ में मिला करके पढ़ना है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सेक्शन 5 बोलता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइंड है सेक्शन 5 में, क्या कहता है, कन्वेयंस बिटवीन लिविंग पर्सन्स, ठीक है। तो जो भी कन्वेयंस है बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स, इट इज कवर्ड बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 6 बोलता है कि व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शन क्या है, स्पेस सक्सेशनेस। स्पेस सक्सेशनेस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे नाम कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, अब मेरा एक ही बेटा है, मेरे मरने के बाद बेटे को ही मिलनी है, ठीक है, लेकिन मेरा बेटा आज की डेट में कोई ये एग्रीमेंट नहीं कर सकता किसी के साथ कि मेरा बापू अगर टपक जाएगा तो मैं ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा। इसको कहते हैं हम स्पेस सक्सेशनेस, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेशन, ठीक है, समझ में आ गया। सेक्शन 43 बोलता है फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल। सेक्शन 53 थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे। सेक्शन 53 बोलता है फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर वॉइडेबल एट द इंस्टेंस ऑफ ए डिफीटेड क्रेडिटर। मान लीजिए आपने किसी के पैसे देने और आपने उस लाइबिलिटी को अवॉइड करने के लिए आपने कोई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कर दी, तो उस केस में ये वॉइडेबल है एट द इंस्टेंस ऑफ ए डिफीटेड क्रेडिटर, क्योंकि उसका इंटरेस्ट हैम्पर हो गया ना वो जो क्रेडिटर का है ना। 53 ये बोलता है पार्ट परफॉर्मेंस, इट टॉक्स ऑफ इक्विटेबल प्रोटेक्शन टू ए ट्रांसफर इन पोजीशन। सेक्शन 54 बोलता है सेल ऑफ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर आपने कोई भी टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल की है, तो अगर आप वो 100 रुपए से ज्यादा है तो वो आपको सिर्फ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से ही हो सकती है, ओरल नहीं हो सकती, ठीक है। सेक्शन 58 एफ और 59 टॉक्स ऑफ मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, ठीक है। तो वो ये कहता है कि दीज नीड्स नो रजिस्टर्ड डीड। सेक्शन 105 106 में लीज के बारे में डिफाइंड है कि व्हाट इज द ड्यूरेशन, व्हाट आर द नोटिस रिक्वायरमेंट। और सेक्शन 123 आपका गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। रजिस्टर्ड अटेस्टेड इंस्ट्रूमेंट इज मैंडेटरी इन केस ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीजें क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में क्या क्या पूछेगा आपसे, या तो वो क्वेश्चन पूछता है आपसे मॉर्गेज के ऊपर, क्योंकि मॉर्गेज डिफरेंट टाइप्स की होती है ना। इंग्लिश मॉर्गेज है, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स है, या मार्शलिंग ऑफ सिक्योरिटीज पे कई बार सवाल पूछ लेता है, लीज पे सवाल पूछ लेता है। लीज अलग अलग तरह की होती है ना। आपने फैक्ट्री लीज पर दे रखी है, आपने कोई माइनिंग लीज पर दे रखी है, कोई एग्रीकल्चरल लैंड है ना। अब एग्रीकल्चर आपने खेती पे किसी को जमीन दे दी, आज दे दी, तो आप कल तो नहीं कह सकते ना उसको, अगले ने बीज बो दिया उसने, आप उसको कल तो नहीं कह सकते ना खाली कर दो। तो डिपेंड करता है कि आपका जो नोटिस पीरियड है या मिनिमम पीरियड ऑफ लीज कितना होना चाहिए। वो एग्रीकल्चरल लीज या फैक्ट्री लीज में डिफरेंट है, और बाकी जो ऐसे नॉर्मल रेंटल लीज है उनमें डिफरेंट है। बाकी हम डिटेल में उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कुछ केस लॉज भी हैं। ये क्या कहते हैं, सेक्शन 54 या 55 से रिलेटेड है ये केस, दही बेन वर्सेस अरविंद भाई कल्याण जी भंसावली। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। ये कहती है कि एडिक्वेसी ऑफ सेल कंसिडरेशन कैन नॉट बाय इटसेल्फ बी ए ग्राउंड टू ट्रीट ए रजिस्टर्ड सेल डीड एज ए शैम और नॉमिनल ट्रांजैक्शन, ठीक है। मतलब ये है कि आपने कोई झूठी ट्रांजैक्शन कर ली, ठीक है, सेल कंसिडरेशन उसमें प्रॉपर है, तो खाली सेल कंसिडरेशन के बेसिस पे ये डिसाइड नहीं हो सकता कि ये कोई शैम ट्रांजैक्शन है या नॉमिनल ट्रांजैक्शन, ठीक है। सो ए ट्रांजैक्शन मे बी कंसिडर्ड एज ए शैम और नॉमिनल ट्रांजैक्शन डिस्पाइट द फैक्ट दैट सेल कंसिडरेशन इज एडिक्वेट। फिर सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज का केस है वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें कहा गया कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स बाय सेल एग्रीमेंट या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी will do not convey title, only a registered deed under section 54 does। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे आप लोग में दिल्ली रहते हैं, वो कहते हैं जी सिर्फ हमारे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, ठीक है। जनरली सेल एग्रीमेंट रहता है, जो कच्ची कॉलोनियां होती हैं आप समझते ही हैं मेरे हिसाब से, है ना। तो जो सेल एग्रीमेंट है
या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है या विल है, समझ रहे हो? तो उससे क्या होता है, टाइटल कन्वे नहीं होता। इस पे ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है, सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। तो वो कहता है कि भाई आपको रजिस्टर्ड डीड तो करवानी ही पड़ेगी। ठीक है। एक सेक्शन 53A का केस है पार्ट परफॉर्मेंस के ऊपर, टेक्नो डेटा सॉल्यूशंस वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इसमें ये कहते हैं कि पार्ट परफॉर्मेंस प्रोटेक्ट्स पोजीशन बट डज नॉट इटसेल्फ कन्फर ओनरशिप, इट इज अ शील्ड नॉट अ स्वॉर्ड। सर एक पार्ट परफॉर्मेंस थोड़ा सा समझा दीजिए। हाँ देखिए, ऐसा होता है कि पार्ट परफॉर्मेंस में क्या है, देखो दो पार्टीज रहती है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में दो पार्टी, ठीक है, एक ने पैसे देने हैं, दूसरे ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है। अब मान लीजिए आपने पैसे दे दिए, ठीक है, दूसरे ने आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी, हो सकता है ना, क्योंकि दोनों ट्रांजेक्शन जरूरी नहीं कि भाई सेम टाइम पर हो। तो अगर मान लो एक आदमी ने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया, दूसरे आदमी ने पार्ट परफॉर्म नहीं किया, तो ये नहीं कि ओनरशिप हो जाएगी, ठीक है ना। ये शील्ड तो हो सकती है लेकिन स्वॉर्ड नहीं है, ये बताओ। ओके सर। कुछ टाइमलाइंस हैं, इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने बताया, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एग्रीकल्चरल है या मैन्युफैक्चरिंग है। अब आपने मान लो किसी कोई फैक्ट्री ली लीज पर, ठीक है। अब फैक्ट्री में आप तो मशीनरी लगाओगे, एग्रीकल्चर है तो आप उसमें क्रॉप बोओगे। तो उन केस में कम से कम जो लीगल नोटिस पीरियड है वो 6 महीने का होना चाहिए, ठीक है। 6 महीने से पहले आप नहीं कह सकते कि भाई आप ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दो, समझ रहे हो? और बाकी केसेस में क्या है, बाकी केसेस में ये 15 डेज है अगर आपकी मंथ टू मंथ लीज है तो, ठीक है। लेकिन इसमें जो लीज नोटिस पीरियड आपका मिनिमम 6 मंथ्स है, एग्रीकल्चरल या मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। आप कोई सेल कर रहे हो, मॉर्टगेज कर रहे हो या गिफ्ट कर रहे हो ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इसके लिए कोई सेपरेट टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है ये प्री कंडीशन है टू वैलिडिटी, ठीक है। अगर फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर है तो इट मस्ट बी चैलेंज बाय द डिफीटेड क्रेडिटर विद इन द ऑर्डिनरी लिमिटेशन पीरियड। मतलब ये कि ए ने पैसे दे रहे थे बी को, अब ए के पास एक प्रॉपर्टी है, अब ए ने सोचा अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो मेरी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करा के ये तो रिकवर कर लेगा, और उसने उसको प्रॉपर्टी को सी को बेच दिया, ठीक है। तो ये फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर हो गई, है ना, टू डिफीट द राइट्स ऑफ द क्रेडिटर। तो उस केस में डिफीटेड क्रेडिटर जो है वो जो ऑर्डिनरी लिमिटेशन पीरियड है आपका उसी में ही एक्शन ले सकता है, ये मतलब, ठीक है। मॉर्टगेज रिडेम्पशन, लिमिटेशन पीरियड कब से स्टार्ट होगा? है जी। सर ये फ्रॉडुलेंट वाले में लिमिटेशन पीरियड कब से स्टार्ट होगा सर? ऑर्डिनरी लिमिटेशन पीरियड मतलब ये 3 साल का हो जाएगा ना वो। फ्रॉडुलेंट वो ट्रांजैक्शन में जो सर कब से एक्चुअली क्या होता लिमिटेशन है, पीरियड स्टार्ट होगा? जो भी लिमिटेशन पीरियड होता है ना वो कॉज ऑफ एक्शन से होता है। अब कॉज ऑफ एक्शन आपको प्रूव करना पड़ेगा। कॉज ऑफ एक्शन में ये है कि जब आपको पता चला तभी से आप कर सकते हो, वो सारा फैक्ट बेस्ड होता है एक्चुअली। लिमिटेशन पीरियड, ऑर्डिनरी लिमिटेशन हाँ सर, पीरियड क्या है, फ्रॉड में तो जब पता, हाँ जब से पता चला फ्रॉड का तब से ही तो होगा ना? हाँ तब सही होगा नेचुरली, हाँ वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। यस सर। हाँ ये सब चीजें सब्जेक्ट टू प्रूफ होती है ना। मॉर्टगेज रिडेम्पशन में क्या है, इट इज गवर्न बाय द मॉर्टगेज डीड्स टर्म्स नॉट अ फिक्स्ड स्टैट्यूटरी पीरियड। मतलब क्या होता है कि मॉर्टगेज होती क्या है, मॉर्टगेज क्या है, आपने लोन दिया और लोन लिया आपने, और लोन के बदले में आपने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, मॉर्टगेज कर दी, ठीक है। अब आप वापस कर रहे हो लोन, तो आपको नेचुरली मॉर्टगेज को रिवर्स करवाना है। तो ये जो है इसके लिए कोई फिक्स्ड स्टैट्यूटरी पीरियड नहीं है, ये जो मॉर्टगेज डीड की टर्म्स है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा, टाइमलाइन इसमें ये हो, ठीक। केस स्टडी से समझते हैं, थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाएगा। काजल जी पढ़िए एक बार जरा। यस सर। हम्म Anil agrees to sell his Bahadurgarh plot rupees 18 lakh to Bimal on a plain unregistered agreement. Bimal pays the full price and takes possession, but no instrument is presented for registration. What is the legal position of this sale in Bimal's hand? अब No होया क्या sale in कि law मान under लीजिए आपने section क्या है, 50.
कोई ओ, प्लॉट खरीदना था, अनिल ओनर है और अनिल ने इसको बेच दिया बिमल को 18 लाख रुपए, लेकिन कोई रजिस्ट्री नहीं करवाई। बिमल ने पैसे दे दिए हैं, पोजीशन भी उसके पास है, लेकिन उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। यस प्लीज, पढ़िए पढ़िए। yes, sir. The answer will be A. No sale in law under section 54. हम्म, Value exceeds rupees 100. Registration is mandatory. At best, a contract for sale. हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा हम इसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल मान सकते हैं, लेकिन ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, हाँ जी। Yeah. Is the NBFC security interest validly created under the TPA? The answer will be B. Yes. Section 58F, a mortgage by deposit of title deeds in a notified town needs only delivery of documents with intent to secure. हम्म। तो बेसिकली क्या Sorry, है? sir, I didn't read the facts. Kunal borrows rupees 20 lakh. Sorry, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, कोई बात नहीं, पढ़िए प्लीज। हाँ। Kunal borrows rupees 25 lakhs from Delhi NBFC. Yes, sir. Yeah, Kunal borrows 25 lakhs from a Delhi NBFC against his flat. A notified town simply hands over the original title documents with intent to create. हम्म, कोई बात नहीं, बीच बीच में ना आपके आवाज जा रही है, कोई बात नहीं, मैं पढ़ देता हूँ। फैक्ट्स तो आपको पता चल गए। तो फैक्ट्स क्या है? कुणाल ने 25 लाख बोरो किए दिल्ली एनबीएफसी एजेंट से अगेंस्ट हिज फ्लैट। ठीक है, अब उसने सिर्फ ओरिजिनल टाइटल डीड्स दे दी, तो कोई मॉर्टगेज डीड एक्सिक्यूट नहीं की। तो अब बात ये आती है कि जो एनबीएफसी की सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, इट इज वेदर इट इज वैलिडली क्रिएटेड अंडर द टीपीए। सो द आंसर So विल B बी will be यस। B. हाँ, B. हाँ। So a mortgage by deposit of title Yes, deed the in a notified town section. needs only delivery documents with intent to secure. हाँ, एमसीक्यू देख लेते हैं। If a property is transferred while a suit about that very property is pending in court, what happens to the rights of the parties to that suit? कि उनके राइट्स के बारे में क्या होता है? ठीक है, बेसिकली ये, आप मान लीजिए कोर्ट में कोई प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा है दो पार्टीज का, और बीच में आपने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है ना? तो जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनका क्या होगा? ठीक है, तो एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस। डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस क्या बोलता है? बेसिकली कि आप, इफ एनी मैटर इज, इफ एनीथिंग इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ लिटिगेशन, अगर कोई भी लिटिगेशन पेंडिंग है, लिस्ट मतलब, लिस्ट मतलब लेजिस्लेशन, अगर वो पेंडिंग है, कोई मैटर पेंडिंग है, कोई इशू पेंडिंग है, तो इट कैनॉट, यू कैनॉट बाय वर्च्यू ऑफ ट्रांसफर प्रेजुडिस द राइट्स ऑफ एनी पार्टी टू द पेंडिंग सूट। जैसे हमने पहले वाला ही केस देखा था, ये वाला केस है जैसे। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने अपना बहादुरगढ़ प्लॉट जो है, बहादुरगढ़ वाला प्लॉट बिमल को बेच दिया, आपने कोई रजिस्ट्री नहीं करवाई। अब ये मामला चला गया कोर्ट में, बिमल ने पैसे दे रखे हैं, बिमल ने पैसे दे रखे हैं, और लेकिन उसके बाद रजिस्ट्री तो है नहीं। अब अनिल ने क्या किया, यही सेम प्लॉट किसी प्रवीण को बेच दिया। ठीक है, तो अब बात यह है कि अगर प्रवीण को बेच दिया तो बिमल का क्या राइट रहेगा, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें यह होगा कि आप ऐसा कोई ट्रांसफर नहीं कर सकते अगर कोई पेंडिंग सूट है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आप प्रॉपर्टी के पेपर्स देखोगे उनमें भी ये चीज लिखी रहती है ना, कि इसके पास प्रॉपर टाइटल है वगैरह वगैरह। और ये तो हमने पढ़ ही लिया कि सेल ऑफ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू ऑफ
100 प्लस इट मस्ट बी मेड बाय ए रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। अगर आप किसी को प्रॉपर्टी गिफ्ट देना चाहते हो, क्योंकि गिफ्ट में आप मनी भी गिफ्ट कर सकते हो, कोई प्लॉट भी गिफ्ट कर सकते हो। तो अगर मान लो आपने प्लॉट गिफ्ट करना है, तो इसके लिए आपको रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट चाहिए अटेस्टेड बाय 2 विटनेसेस। ठीक है, उसके बिना जो है गिफ्ट ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। ठीक है, सेक्शन 53A टॉक्स ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। तो पार्ट परफॉर्मेंस में क्या होगा कि प्राइमरीली प्रोटेक्ट्स द पोजेशन टेकन इन फर्दरेंस ऑफ एन अनरजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब दो पार्टीज हैं, एक ने पैसे दे दिए, दूसरे एक ने पैसे देने थे, दूसरे ने रजिस्ट्री करवानी थी। तो पार्ट परफॉर्मेंस का क्या मतलब है, जिसने पैसे देने थे उसने दे दिए, जिसने रजिस्ट्री करवानी थी उसने नहीं करवाई, या उल्टा भी हो सकता है, उसने रजिस्ट्री करवा ली, उसने पैसे नहीं दिए। ठीक है, तो इसमें प्रोटेक्शन क्या मिलती है पार्ट परफॉर्मेंस के केस में? प्रोटेक्शन मिलती है पोजेशन टेकन इन फर्दरेंस ऑफ एन अनरजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर थोड़ा सा देख लेते हैं। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में क्या कहता है? सेक्शन 9 और सेक्शन 10, सेक्शन 11, ये तीन सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। सेक्शन 9 क्या बोलता है? सेक्शन 9 बोलता है कि कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस दे आर बार्ड। मतलब एक फाउंडेशनल जुरिस्डिक्शन है कि कोर्ट जो है किसी भी सिविल सूट को एंटरटेन कर सकता है, ट्राई कर सकता है, जब तक कि कोई स्पेसिफिक बार नहीं। सेक्शन 9 ये बात करता है। सेक्शन 10 बात करता है रेस सबजुडिस। ये कॉन्सेप्ट रेस सबजुडिस क्या है कि अगर कोई मैटर पेंडिंग है इन एन अर्लियर सूट, तो फिर ये वाला सूट जो है इस पर स्टे लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोर्ट का टाइम भी कीमती है। ऐसे तो है नहीं ना कि एक ही मैटर जो है 10-10 कोर्ट्सों में लग रहा है। तो अगर कोई मैटर पेंडिंग है पहले ही किसी कोर्ट में, तो जो नया सूट है उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, प्रोवाइडेड सब्जेक्ट मैटर इज सेम, पार्टीज आर सेम। ठीक है, सेक्शन 11 बोलता है रेस जुडिकाटा। ये रेस जुडिकाटा क्या है? रेस जुडिकाटा कहता है कि अगर कोई मैटर फाइनली डिसाइडेड है, ठीक है, तो देर इज ए बार ऑन रीलिटिगेटिंग ए मैटर फाइनली डिसाइडेड। मतलब दो पार्टी के बीच में झगड़ा था, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, तो उसी मैटर को दोबारा आप उसी पॉइंट पर सूट फाइल नहीं कर सकते अगर डिसीजन हो चुका है। तो डिसीजन के बाद तो अपील ही हो सकती है, दोबारा उस मैटर पर सूट फाइल नहीं हो सकती। ठीक है, सेक्शन 26 to 32 बात करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स, प्लीडिंग्स, डिस्कवरी और समन्स की। सेक्शन 89 बात करता है सेटलमेंट आउटसाइड द कोर्ट। ठीक, इसके बारे में बहुत सारी हमारी पीपीटीज पहले से भी हैं, बहुत सारी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आज तो हम इन जनरल सारे केस लॉज, सारे जो अलाइड लॉज है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछते हैं वो एक तो रेस जुडिकाटा पे पूछते हैं। रेस जुडिकाटा के बारे में पूछेंगे कि भैया क्या होता है अगर पार्टीज डिफरेंट हो गई तो फिर चल सकता है, लेकिन अगर पार्टी सेम है तो फिर नहीं हो सकता। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए कोई पब्लिक राइट है, पार्क का मैटर है। ठीक है, पार्क के मामले में केस चल रहा है कि भाई पार्क में जो है किसको एक्सेस है। ठीक है, एक आरडब्ल्यू है, आरडब्ल्यू ने एक केस किया हुआ है। ठीक है, कि भाई पार्क का एक्सेस के ऊपर कोई झगड़ा है कि किसको उस पार्क में जाने की एक्सेस, आरडब्ल्यू ने किया और उन्होंने डिसाइड कर दिया। अब आरडब्ल्यू का ही कोई मेंबर दोबारा से क्या इस केस को फाइल कर सकता है? द आंसर इज नो। ठीक है, क्योंकि वो कहता है इन मैटर ऑफ पब्लिक राइट, अगर बहुत सारी पार्टीज इंटरेस्टेड हैं और एक पार्टी ने केस किया है, तो दूसरी पार्टी भी उसी चीज के बारे में दोबारा केस नहीं कर सकती। अपील में जा सकते हो, एक अलग चीज। सेक्शन 9 बात करता है जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स की। जो भी सिविल कोर्ट है उनके पास सारे टाइप के ऑल सूट्स ऑफ ए सिविल नेचर अनलेस दे आर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड, दे आर कवर्ड। तो कोर्ट्स हैव द जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन सूट्स ऑफ ऑल सिविल नेचर। ठीक है, सेक्शन 10 या सेक्शन 11 बात करता है रेस सबजुडिस या रेस जुडिकाटा की। तो देयर इज ए कंट्रोल
of parallel and repeat litigation, है ना, so that the time of courts is not wasted. रेस जुडिकाटा के ऊपर जनरल प्रिंसिपल क्या है? इसमें केस बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्यधन घोषाल वर्सेस देवराजन देवी। ये क्या केस है? ये कहता है कि द रूल अप्लाइज एट एवरी स्टेज ऑफ द सेम प्रोसीडिंग, नॉट मियरली बिटवीन सेपरेट सोर्स। तो मतलब जनरल प्रिंसिपल रेस जुडिकाटा क्या बोलता है? रेस जुडिकाटा बोलता है कि एक मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है, सब्जेक्ट मैटर सेम है, पार्टी सेम है, तो दोबारा आप उसको रिकअप नहीं कर सकते। ठीक है। किरण सिंह वाला केस इसमें बोलता है कि डिक्री पास्ड विदाउट जुरिसडिक्शन इज ए नलिटी एंड कैन बी चैलेंज इवन इन एक्सिक्यूशन और कोलेटरली। सिल्वर लाइन का केस बोलता है कि एक्सिक्यूशन प्रोसीडिंग्स मस्ट नॉट बी अलाउड टू बी रिड्यूस्ड टू ए mere फॉर्मेलिटी बाय dilatory objections. The executing court cannot go behind the decree. कई बार कोर्ट मैटर्स में क्या होता है कि आप सिर्फ डिले टैक्टिक्स के लिए ऑब्जेक्शंस लगा देते हो, ठीक है ना। तो अगर एक्सिक्यूशन प्रोसीडिंग्स हैं, डिक्री के केस में क्या होता है? मान लीजिए आपने किसी से कोई पैसे रिकवर करने हैं, आपने केस फाइल किया, कोर्ट ने आपको डिक्री ग्रांट कर दी। अब कोर्ट ने जब डिक्री ग्रांट कर दी तो उसके बाद उस डिक्री का एक्सिक्यूशन होता है। एक्सिक्यूशन कौन कौन करता है? या तो वही कोर्ट करेगा या फिर जहां पर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ठीक है। मान लो ए ने बी से 50 लाख रुपए लेने हैं। ठीक है। अब ये प्रूव हो गया कि भैया बी ने पैसे देने थे, ए के फेवर में डिक्री ग्रांट हो गई। अब जब डिक्री ग्रांट हो गई तो जिसके फेवर में डिक्री ग्रांट हुई उसको क्या कहेंगे? डिक्री होल्डर। और जिसके अगेंस्ट में डिक्री आई है उसको कहते हैं जजमेंट डेटर। तो बी इसमें जजमेंट डेटर हो गया और ए हो गया डिक्री होल्डर। अब डिक्री ग्रांट हो गई। अब जो एक्सिक्यूटिंग कोर्ट है ये दोबारा से ये प्ली नहीं रेज कर सकता कि भैया ये डिक्री सही ग्रांट हुई नहीं हुई, ये मतलब है। तो एक्सिक्यूटिंग कोर्ट का काम क्या है? उसको डिक्री को एक्सिक्यूट करना है, वो पुरानी हिस्ट्री में दोबारा से केस को नहीं खोलेगा, ये मतलब। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में रिसेंट अमेंडमेंट्स क्या आई? अब आपको मालूम है कि मीडिएशन एक्ट आ गया हमारे पास 2023 में, ये भी हमारे सिलेबस में है। ठीक है। तो जब ये मीडिएशन एक्ट आ गया तो हमारी कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट हो गई सेक्शन 89 में। तो इसमें क्या किया? इट अलाइंस प्री लिटिगेशन एंड कोर्ट रेफर्ड मीडिएशन विद द न्यू इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन फ्रेमवर्क। तो इसने ये कहा कि भाई अगर लिटिगेशन से पहले मीडिएशन पॉसिबल है तो मीडिएशन करो। ठीक है। या कई केसेस में आपने सूट फाइल कर दिया लेकिन कोर्ट कह देता भाई आप मीडिएशन में चले जाओ। ठीक है। तो जो सेक्शन 89 था हमारा उसको इन्होंने अलाइन कर दिया विद प्री लिटिगेशन एंड कोर्ट रेफर्ड मीडिएशन। ठीक है। कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट आया 2014 में। ये कहता है कि फॉर कमर्शियल डिस्प्यूट्स मैंडेटरी प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन सेक्शन 12A एंड ए मॉडिफाइड सीपीसी प्रोसीजर केस मैनेजमेंट समरी जजमेंट। क्योंकि होता क्या है कि जो मनी में सिविल कोर्ट्स हमारे पास पहले से ही ओवरवर्क्ड है। ठीक है। उनके पास तो टाइम ही नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि भैया कुछ कमर्शियल कोर्ट्स बना दिए। कमर्शियल कोर्ट्स हर मेजर सिटी में है, दिल्ली में भी है, द्वारका कोर्ट में है, मुंबई में भी है, ऐसे मेजर मेजर सिटीज में कमर्शियल कोर्ट्स बना दिए। तो इन्होंने ये कहा कि अगर कोई कमर्शियल डिस्प्यूट है तो उसके लिए आपका प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन जरूरी है सेक्शन 12 और उसमें मॉडिफाइड सीपीसी प्रोसीजर है रिगार्डिंग केस मैनेजमेंट समरी जजमेंट। Then no fresh central amendment to the listed sections order 21 in the current cycle. So state amendments exist in some jurisdiction. You have to verify the Delhi Haryana schedule for local practice. कुछ टाइमलाइंस के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट अपील कब हो सकती है? सेक्शन 96 बोलता है कि ऑर्डिनरली विद इन 30 to 90 days डिपेंडिंग अपॉन द कोर्ट पर द लिमिटेशन एक्ट। तो लिमिटेशन एक्ट में शेड्यूल दे रखा है कि फर्स्ट अपील आपकी जो है ऑर्डिनरली बिटवीन 30 to 90 days हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द कोर्ट। सेकंड अपील होगी आपकी हाई कोर्ट में। इट इज कन्फाइंड टू ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। एक्सिक्यूशन ऑफ डिक्री जो है इट इज जनरली मेड विद इन 12 years ऑफ द डिक्री बिकमिंग एनफोर्सेबल। ठीक है। नाउ रिगार्डिंग दिस रेफरेंस टू दिस एडीआर, ठीक है,
Alternative dispute resolution या mediation as per section 89, it is done at the court's discretion at any stage of the suit. ठीक है. पेनल्टीज कहाँ डिफाइंड है? पेनल्टीज आपके सेक्शन 60 to 64 में है कि प्रॉपर्टी इज लायबल टू अटैचमेंट और सेल इन एक्सिक्यूशन, और कुछ एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टी है प्रोवाइजो टू सेक्शन 60. ये अपना एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टी कौन सी है? बेसिकली इसके अंदर ना कुछ पेंशन कवर्ड है, पीएफ वगैरह कवर्ड है, जो मिलिट्री पर्सनल वगैरह है उसके बारे में ये बेसिक कुछ एग्जेम्पशंस है. एग्रीकल्चर में जैसे टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स वगैरह हैं, हर चीज हर प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो सकती. ठीक है ना. तो वो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी दे रखी हैं जो अटैच नहीं हो सकती. 64 बोलता है कि प्राइवेट एलिनेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी इज वॉइड एज अगेंस्ट द एक्सिक्यूशन क्रेडिटर. आपने कोई प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी, उसको प्राइवेटली एलिनिएट कर दिया, मतलब सेल कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो दैट इज वॉइड. ठीक है. ऑर्डर 21 में फिर फुल एक्सिक्यूशन मशीनरी है, इसमें अटैचमेंट, सेल, पोजेशन, क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस की बात करता है. कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं. रमेश ने क्या किया? रमेश sued सुरेश फॉर पोजेशन ऑफ ए शॉप एंड लॉस्ट ऑन मेरिट्स आफ्टर ए फुल ट्रायल. ठीक है. रमेश और सुरेश के बीच में कुछ झगड़ा था दुकान का, उन्होंने केस फाइल किया, लेकिन जो है केस हार गया रमेश. ठीक है. द डिक्री अटेन्ड फाइनलिटी. ठीक है. 2 years लेटर रमेश फाइल्स ए फ्रेश सूट अगेंस्ट सुरेश फॉर द सेम पोजीशन, रेजिंग ए ग्राउंड ही कुड हैव रेज्ड अर्लियर. ठीक है. इसमें एक ये भी बात है, रेस जुडिकाटा की कॉन्सेप्ट क्या बोलती है कि अगर कोई ग्राउंड आप पहले से रेज कर सकते थे और अगर आपने रेज नहीं की तो ये भी मान लिया जाएगा कि वो मैटर भी डिसाइड हो चुका है. ठीक है. ऐसा नहीं आप कह सकते जी वो ग्राउंड जो है ये तो मैं अब रेज कर रहा हूं. नहीं, अगर आपको पहले से पता थी वो ग्राउंड तो ये भी मान लिया जाएगा कि वो भी डिसाइड हो चुकी है, तो भी आप कोर्ट जो है वो फ्रेश सूट अलाउ नहीं करेगा. ठीक है. तो क्वेश्चन एक बार पढ़िए जरा काजल जी. Yes, sir. हम्म. Can Ramesh maintain the second suit against Suresh for the same possession claim, having already lost on merits after a full trial? The answer will be no. हम्म. The doctrine of res judicata bars relitigating a matter already finally decided between the same parties. C will be the answer, sir. पढ़िए सेकंड क्वेश्चन. Does it matter that Ramesh did not actually raise the new ground in the first? Second question, sir. Does it matter that Ramesh did not actually raise the new ground in the first suit? A, yes, a fresh suit is always permitted on a new ground. B, no, because res judicata never applies to possession suits. C, yes, only grounds actually argued are barred. No, explanation 4 to section 11 bars ground that ought to have been raised, whether or not actually raised. So answer will be D. तो जो भी ग्राउंड आप पहले रेज कर सकते थे, चाहे आपने रेज किया या नहीं किया, तो आप फ्रेश सूट अलाउ नहीं करो. यस प्लीज. नेक्स्ट. What is the effect of a decree passed by a court lacking inherent jurisdiction if raised at execution? A, it is nullity and can be challenged even collaterally. B, it becomes valid on non-objection. C, it requires a fresh suit only. D, it cannot be questioned at execution. So D, it cannot be questioned at execution. मतलब एक बार डिक्री अवार्ड हो गई, ठीक है, अब एक्सिक्यूशन स्टेज पे है, तो एक्सिक्यूशन स्टेज पे आप जो है ये इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते. ठीक है. लेकिन अगर इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी उसकी तो फिर आप कर सकते हो. इट इज ए नुलिटी एंड इट कैन बी चैलेंज इवन कोलेटरली. तो किरण सिंह वाली जजमेंट ये कहती है कि भैया अगर जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी किसी कोर्ट की और उसने कोई मैटर डिसाइड कर लिया तो उस चीज को आप चैलेंज कर सकते. हाँ, that will be nullity. Yes.
ये पढ़ लीजिए एक बार। आदित्य कुमार जी, आप पढ़ सकते हो? Yes, sir. आप पढ़िए पढ़िए। A decree holder obtains a money decree against a judgment debtor and applies for attachment of the debtor's house under Order 21. अच्छा, पहले तो ये बताइए कि जजमेंट डेटर कौन होता है? दो चीजें है ना, एक तो जजमेंट डेटर है, एक डिग्री होल्डर है। जजमेंट डेटर कौन होता है? जजमेंट डेटर वो होता है सर जिसके फेवर में जो हार जाता है, जिसका हाँ, जजमेंट डेटर वो मोटा मोटा जिसके जिसने अगेंस्ट में पैसे ऑर्डर होता देने है। हैं बेसिकली। अगर मान लो मनी मैटर है और डिक्री हो गई, तो जजमेंट डेटर वो होता है जिसने पैसे देने होते हैं, और डिक्री होल्डर वो होता है जिसने जिसके पैसे फेवर में लेने ऑर्डर। हैं। है ना, जी। बेसिकली। हाँ, चलिए पढ़िए। Before the attachment order is made, the debtor secretly sells the house to his brother-in-law for a nominal price. हम्म। अब इस केस में फैक्ट्स क्या है कि डिक्री हो चुकी है, लेकिन उसने जी। क्या किया, उसने सीक्रेटली बेच दिया अपने ब्रदर इन। ठीक। अटैचमेंट होने से पहले। हाँ। If the sale occurred after attachment, what is its effect under Section 64? हम्म इसका तो बी होना चाहिए सर। Void as against all claims enforceable under the हम्म attachment. हम्म अगर डिक्री अवार्ड हो चुकी, तो सिंपली टू जी। डिफीट द राइट्स ऑफ द डिक्री होल्डर, इफ यू ट्रांसफर इट, तो देन इट इज वॉइड। Question 2. Which property categories are exempt from attachment under the proviso to the Section 66? हाँ, होता क्या है कि हमारा सेक्शन 60 है जो अटैचमेंट की बात करता है, लेकिन अटैचमेंट में ये नहीं कि भाई आपके घर के बर्तन भी उठा के ले जाएंगे। है ना, तो उसमें कुछ एग्जम्पशन दे रखी है। तो एग्जम्पशन क्या है? See, sir. हाँ, ठीक है। ये वीरिंग अप्रैल वगैरह होता था जैसे राजा महाराजा में। ठीक है, मान लो उसका मुकुट है, कोई उसकी तलवार है, कोट है, वो सब नहीं ले जा सकते आप, जो नेसेसरी वीरिंग अप्रैल है। ठीक है। इसी तरह से टूल्स ऑफ ट्रेड होते हैं, कोई आर्ट, कोई एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स है, मान लो उसका हल है ना, वो सब नहीं ले जा सकते। और कुछ अदर स्पेसिफाइड एग्जेम्प्टेड आइटम है, जैसे जो मिलिट्री पर्सनल है या नेवी पर्सनल है, उनकी पेंशन आप अटैच नहीं कर सकते, पीएफ वगैरह अटैच नहीं कर सकते, वो सारी चीजें आप अटैच नहीं कर सकते। पढ़िए आदित्य जी, थर्ड क्वेश्चन। Where execution proceeds are held by more than one court, how are they distributed among decree holders under Section 73? होता क्या है कि मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए रिकवर करने हैं, और उसकी प्रॉपर्टी 4 स्टेट्स में स्प्रेड हो सकता है ना। तो वो क्या करेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे जिस कोर्ट ने डिक्री अवार्ड की है वहां से। अब मान लीजिए एक एक प्रॉपर्टी अटैच कर दी, वहां से 12 लाख रुपए मिल गए। 12 लाख के बाद वो दूसरे कोर्ट को भेज देंगे दूसरी स्टेट में। है ना, पुलिस के थ्रू चलता है ये काम। तो कोर्ट को भेजेंगे, कोर्ट पुलिस को भेजेगा, पुलिस वाले फिर उस बंदे को वहां पेश करेंगे, इस तरह से। तो ये इस तरह से फिर सक्सेशन में ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? D. हाँ, ठीक है, चलिए। तो रेटिवली इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिक्रीज। ठीक है। मान लीजिए 4 स्टेट्स में अगर वो सिचुएटेड है उसकी प्रॉपर्टी, तो एक एक करके सारी स्टेट से उसको सेटिस्फाई कराया जाएगा। और अगर इंडिया से बाहर है, तो इंडिया से बाहर फिर वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जाता है। ये हो गया। अच्छा, ये जो डॉक्ट्रिन है दैट बार्स रीलिटिगेशन ऑफ ए फाइनली डिसाइडेड मैटर इज रेस जुडिकाटा। ठीक है, तो वो कहता है कि अगर कोई मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो वो फिर उस पर रीलिटिगेशन नहीं हो सकता। ये रेस जुडिकाटा की कॉन्सेप्ट है। ठीक है? और अगर फर्स्ट अपील है या सेकंड अपील है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? भाई फर्स्ट अपील जो है ना, इसमें दोनों क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी और क्वेश्चन ऑफ लॉ भी हो सकते हैं।
लेकिन सेकेंड अपील इज कन्फाइंड टू ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ओनली। ठीक है। और सीपीसी empowers the courts to refer parties to arbitration, conciliation, जुडिशियल सेटलमेंट, लोक अदालत या मीडिएशन। मतलब आपने एक सूट फाइल कर भी दिया तो कोर्ट आपको बोल सकता है कि भाई आप तो आर्बिट्रेशन में जाओ या कंसिलिएशन में जाओ या जुडिशियल सेटलमेंट या लोक अदालत में या मीडिएशन। ठीक है, क्योंकि अब मीडिएशन एक्ट भी आ गया। Key sections and definitions. ये तो हमने मोटा मोटा कवर कर ही लिया, आपको जी, समझ जी। आ ही जाएगा, ऐसी कोई खास बात नहीं है। लिमिटेशन एक्ट एक बार ये पढ़ लीजिए जरा। Landmark case law. BK Educational Service versus Parag Gupta, 2019-11 SEC 633. Article 137 applies to IBC. 3-year residuary periods run from the date of default, not from the date IBC come into force. होता क्या है, जैसे आईबीसी आया तो आईबीसी आते टाइम ना कुछ कंफ्यूजन था लोगों के मन में कि मान लो कोई पुराना केस पेंडिंग है तो आईबीसी आने से 3 साल लोग मानने लगे थे। नहीं, ऐसा नहीं है, पहले कुछ शुरू शुरू में कंफ्यूजन था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो भाई ऐसा है, ये डेट ऑफ डिफॉल्ट से चलेगा आपका 3 साल पीरियड है। ऐसा नहीं कि आपने 1950 में कोई डेट लेना था, अब आईबीसी आ गया तो अब से 3 साल चलेगा ना, ऐसा नहीं है। आपका 3 साल कब से चलेगा? डेट ऑफ डिफॉल्ट से। Defaults. हाँ। Next case. Seshnath Singh versus Vidyabati Shivapulli. Corporation Bank 2021. Section 14 exclusion available before NCLT. Time spent bona fide pursuing a remedy that is surface in another forum can be excluded even in an IBC application. हाँ, ये केस लॉ भी हमारे सिलेबस में है। तो ये केस लॉ क्या बोलता है कि जरूरी तो नहीं ना आप आईबीसी में डायरेक्टली आए हो सकता है आप पहले सरफेसी में एक्शन ले रहे हो, तो आपका जो सरफेसी में जो टाइम लगा वो जो पीरियड है वो आपका 3 साल से एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है। मान लो 2011 में कोई केस चला, 2011 में आप सरफेसी में थे, अब बाद में आ गया 16 में आ गया आईबीसी, तो डेट ऑफ डिफॉल्ट तो आपको पुराना ही होगा, है ना। तो ये जो पीरियड आपका सरफेसी वाले कोर्ट में लगा, जो डीआरटी में लगा, उसको एक्सक्लूड कर देंगे। ये पता। हाँ जी। Asset Reconstruction Company versus Vishal Jaiswal 2021. Section 18 Acknowledgement. An entry in the corporate debtor's balance sheet can amount to a valid written acknowledgement of debt extending limitation. हाँ, होता क्या है कि बैलेंस शीट में आपने कोई डेट दिखा रखा है और बैलेंस शीट डायरेक्टर ने साइन कर रखी है। ठीक है ना। तो ये जो है इसको वैलिड एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट मान लिया जाएगा, और जो भी डेट ऑफ साइनिंग ऑफ बैलेंस शीट है वहां से आप 3 साल ले सकते हो, क्योंकि आपने उसको एक्नॉलेज कर लिया ना एक किस्म से। ठीक है। तो लॉ ऑफ लिमिटेशन में एक तो सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 बोलता है कि देयर इज ए बार ऑफ लिमिटेशन। देखो वो ये कहता है कि भाई देखो ऐसा है कि आपके पास राइट तो है, लेकिन ये नहीं कि आप खुद ही सोए हुए हो, तो फिर आपको कोर्ट जो है कोई रिलीफ ग्रांट नहीं कर सकता। तो सेक्शन 3 बोलता है बार, देयर इज ए बार ऑन लिमिटेशन। जो टाइम बार्ड सूट्स हैं, अपील्स है, एप्लीकेशंस है, दे आर डिसमिस्ड इवन सो मोटे। ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपका कोई जेन्युइन रीजन था, किसी वजह से आप कोई केस फाइल नहीं कर पाए, तो देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ कंडोनेशन ऑफ डिले ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन। ठीक है। लेकिन ये सूट्स पर अप्लाई नहीं होता, ये सिर्फ अपील या एप्लीकेशंस पर ही अप्लाई होता है। सेक्शन 12 ये बोलता है कि अगर आपको कोई टाइम लग गया इन ऑब्टेनिंग कॉपीज ऑफ डिक्री या ऑर्डर, तो वो वाला टाइम आप एक्सक्लूड कर दोगे। सेक्शन 14 बोलता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम स्पेंट बोना फाइड इन ए कोर्ट विदाउट जुरिस्डिक्शन। तो अगर आप किसी कोर्ट में चले गए, उसका प्रॉपर जुरिस्डिक्शन नहीं था, वहां पर आपका कोई टाइम वेस्ट हो गया, तो वो भी लिमिटेशन पीरियड में
फिर एक्सक्लूड आप कर पाओगे। और सेक्शन 18-19 बोलता है फ्रेश लिमिटेशन ऑन रिटर्न एक्नॉलेजमेंट या पार्ट पेमेंट बिफोर एक्सपायरी। तो वो ही कहता है कि अगर आपने कोई रिटर्न एक्नॉलेजमेंट दे दिया या पार्ट पेमेंट कर दिया, आपने 50 लाख का डेट देना था, आपने 10 लाख रुपए दे दिए, तो जब 10 लाख रुपए दे दिए तब से फिर वो लिमिटेशन पीरियड दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये है। ठीक है। लिमिटेशन एक्ट में क्या है, एक तो आर्टिकल 137 बोलता है आपका, इसमें डिफरेंट आर्टिकल्स हैं। कहीं पर 3 साल का पीरियड है, कहीं पर 12 साल का पीरियड है, कहीं पर 20 साल का भी पीरियड है गवर्नमेंट वाले मैटर्स में। तो नॉर्मली पीरियड जो है 3 साल का है, और 3 years फ्रॉम व्हेन द राइट टू अप्लाई फर्स्ट एक्रूज। ठीक है। अगर कोई आपका पोजेशन सूट है विच इज बेस्ड ऑन टाइटल, आर्टिकल 65 बोलता है लिमिटेशन एक्ट का, दैट इट इज 12 years फ्रॉम व्हेन द पोजेशन बिकम्स एडवर्स। ठीक है। कंडोनेशन ऑफ डिले में कोई फिक्स्ड आउटर कैप नहीं है, इट इज टेस्टेड ऑन सफिशिएंट कॉज, बट इट अप्लाइज ओनली इन केस ऑफ अपील्स और एप्लीकेशन, नॉट टू इनिशियल सूट्स। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम क्या है, if you have spent any time in obtaining certified copies or bona fide in the wrong court, then that is also excluded. एक ये वाला केस देख लेते हैं एक बार, आदित्य कुमार जी पढ़ लीजिए प्लीज जरा। A corporate debtors audited balance sheet for financial year 2023-24 signed by its directors and filed with the ROC shows an outstanding unsecured loan from financial creditor as a liability. The financial creditor files a Section 7 IBC application beyond the ordinary 3 years window from the original date of default. Relying on this balance sheet entry, आप पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। फैक्ट तो can समझ में a आ गए, कोई लोन तो आपने लिया पुराना, लेकिन इसने बैलेंस शीट में देखा कि बैलेंस शीट में ये लोन दिखा रखा है। ठीक है ना। तो बैलेंस शीट की जो डेट ऑफ साइनिंग है उसके हिसाब से उसने केस फाइल किया सेक्शन 7 में। यस प्लीज पढ़िए। Can a balance sheet entry amount to a valid written acknowledgement under Section 18? Yes, it will be the answer, sir. तो ये विशल जायसवाल वाला केस है, वो ये कहता है कि बैलेंस शीट एंट्री डिस्क्लोजिंग द लायबिलिटी कैन कॉन्स्टिट्यूट एक्नॉलेज। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए आदित्य जी। What is the effect of a valid Section 18 acknowledgement made before expiry of the original limitation period? क्या इफेक्ट होगा, आपको ये आंसर भी देना है, क्या आंसर होगा इसमें? आप ही बता दीजिए। नहीं मैं तो बता ही दूंगा, आप बताओ, आपको बताना। पेपर तो आपने देना, मैंने थोड़ी देना। भाई अगर कोई एक्नॉलेजमेंट हो गया तो फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन दैट विल बिगिन टू रन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट। ठीक है। पढ़िए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3। Under Article 137, residuary, from when does the 3-year period from Section 7 IBC application ordinarily run? From the date of default? बिल्कुल सही, From the डेट ऑफ डिफॉल्ट। default, yes. ये पढ़िए सेक्शन 5। Page 6. A litigant's appeal against a trial court decree is filed 14 days beyond the prescribed 30 days period. The litigant explains the delay was due to serious medical emergency supported by hospital record. Is Section 5 condonation available for this appeal? तो सेक्शन 5 यही बात करता है कि अगर आपके पास सफिशिएंट कॉज है, ठीक है ना, तो वो फिर परमिट करता है।
So the answer will be yes. D. Section 5 permits condonation of delay in appeals or applications for sufficient. Cause. लेकिन फाइलिंग ऑफ सूट में सेक्शन 5 नहीं चलता, सिर्फ ये चलता है अपील में या एप्लीकेशन। Would Section 5 be equally available had this been an ordinary civil suit file date? Civil suit file में नहीं होगा। No limitation period at all. No. हाँ, तो ये फाइल ही नहीं हो सकता क्योंकि सेक्शन 5 जो है इट एक्सप्रेसली एक्सक्लूड सूट, सो सूट फाइल्ड बियॉन्ड टाइम इज सिंपली डिसमिस्ड अंडर सेक्शन 3। What must the appellant demonstrate to obtain condonation under Section 5? Sufficient cause for not हाँ, preferring सफिशिएंट the कॉज देगा फॉर Sufficient नॉट cause for प्रेफरिंग not दी, preferring the appeal within the हाँ, prescribed within the period. prescribed period। ठीक है जी, चलिए ये हो गया। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन आपका 3 years है। सेक्शन 5 इज अपील अवेलेबल फॉर अपील्स एंड एप्लीकेशंस। A suit to recover possession of immovable property based on title is barred after 12 years. 12 years. On expiry of limitation, the general effect is क्या होगा? Remedy is barred, but the right survives. Right तो रहता है उसका, ठीक है। रेमेडी बार हो गई मतलब वो केस फाइल नहीं कर सकता, अगर वो पैसे देना चाहे तो दे सकता उसको, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। एक इसमें कॉन्सेप्ट आती है, वो एक्चुअली लिमिटेशन पीरियड से नहीं है, आप समझिए वो है उससे रिलेटेड, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से। राइट ऑफ रिडेम्पशन, राइट ऑफ प्रीएम्पशन। ये प्रीएम्पशन राइट क्या होता है, कुछ आइडिया है क्या होता है ये प्रीएम्पशन? कई बार पूछ लेता सवाल हो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में पूछ लेता है, क्या होता है? कुछ आइडिया है किसी को? काजल किरण जी, डू यू हैव एनी आइडिया? राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्या होता है? ये सर प्रीएम्पशन राइट वो होता है जिसमें मान लीजिए सर अगर 2 ब्रदर्स हैं और अगर वो अपना प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है, दोनों ही हैं उसमें लीगल हायर्स, तो पहला राइट ऑफ प्रीएम्पशन उसको मिलता है कि वो अगर एक बेचना चाहता है एक नहीं बेचना चाहता है तो पहले उसको बोलता है कि आप अगर पैसे दे सकते हो तो आप ही पहले खरीद लो दूसरों को बेचने से पहले। वेरी गुड, राइट ऑफ वेरी गुड, प्रीएम्पशन। बिल्कुल सही है कि मान लीजिए फादर के नाम प्रॉपर्टी थी, 2 भाई हैं, 2 भाइयों के पास प्रॉपर्टी चली गई, ठीक है। अब मकान सिंगल ही है ना, तो अब दोनों का इक्वल शेयर है उसके अंदर। अब वो बेचना चाह रहा है, एक बेचना चाह रहा है, दूसरा नहीं बेचना चाह रहा। तो जो बेचना चाह रहा है उसको सबसे पहले दूसरे आदमी को ही ऑफर करना पड़ेगा, अपने ब्रदर को, कि देखो भाई मैं तो बेचना चाह रहा हूं, तो अगर तुम्हें खरीदना है पहला राइट तुम्हारा है, अगर तुम नहीं खरीदना चाहते या तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो फिर मैं बाहर बेचूंगा। ये राइट ऑफ रिडेम्पशन। एक उसके अलावा एक होता है मार्शलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ये मार्शलिंग ऑफ सिक्योरिटीज की क्या कॉन्सेप्ट है? मार्शलिंग की कॉन्सेप्ट होती है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में। ये क्या कॉन्सेप्ट होती है? क्यों आदित्य कुमार जी, एनी आइडिया ऑन दिस? मार्शलिंग क्या होती है? देखो मार्शलिंग वर्ड से ही हमें कुछ पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? कि जैसे कुछ मिलिट्री से रिलेटेड है, कुछ ऑर्डर से रिलेटेड है, कुछ डिसिप्लिन से रिलेटेड है, ठीक है। कई बार क्या होता है, मान लीजिए एक आदमी की 4 प्रॉपर्टीज, एग्जाम्पल से समझते हैं, जल्दी समझ में आएगा। एक आदमी की 4 प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज एक ही के नाम मॉर्टगेज है और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसमें 2 के नाम मॉर्टगेज है, हो सकता है ना, पेरी पैसू चार्ज होता है। अब जिसके नाम, और मान लीजिए एक बैंक है, बैंक ले लेते हैं, बैंक का केस ले लेते हैं। अब एक बैंक के पास 4 प्रॉपर्टीज मॉर्टगेज है, ठीक है। एक ही आदमी है जिसने लोन ले रखा है। अब लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो दूसरे बैंक के पास भी मॉर्टगेज है, मतलब एक बैंक से ज्यादा का चार्ज है, पेरी पैसू चार्ज है, हो सकता है ना। अब वो बैंक उन प्रॉपर्टीज को बेचना चाह रहा है,
तो दूसरा बैंक उसको ये कह सकता है कि भाई पहले आप उन प्रॉपर्टीज को बेचो जिसमें आपका एक्सक्लूसिव चार्ज है। समझ रहे हो? मतलब पहले उस प्रॉपर्टी को ना बेचो जिसमें हमारा भी पेरी पैसो चार्ज है। ये कॉन्सेप्ट होती है मार्शलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। समझ में आ गया आदित्य जी? यस सर, यस सर। Yes, ये कॉन्सेप्ट sir. बाकी आप थोड़ा बहुत करोगे चैट जीपीटी पे तो थोड़ा समझ लेना, क्योंकि सवाल कई बार पूछ लेता है मार्शलिंग ऑफ सिक्योरिटीज या राइट ऑफ प्रीएम्पशन। बेसिकली कॉन्सेप्ट है, अगर समझ में आ जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, फिर आप आंसर कर सकते हो। ये हो गया, एलिमिनेशन हो गया, ये हो गया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अब ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में सबसे पहले तो हमारे को पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन देखनी। पब्लिक सर्वेंट कौन है? जहां पर भी जो एम्प्लॉयर है उसके पब्लिक मनी इन्वॉल्व है। ठीक है? जैसे बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी होती हैं जिसमें गवर्नमेंट की फंडिंग है, गवर्नमेंट से एड मिल रही है, तो वो फिर आपकी बेसिकली उनमें कोई एम्प्लॉय है तो वो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आता है। जैसे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में जो कैशियर है वो भी पब्लिक सर्वेंट में आएगा। यूनिवर्सिटी का कोई क्लर्क है, अगर वो रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया तो वो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आता है। बेसिक बात ये समझ लीजिए कि जहां पर भी पब्लिक मनी इन्वॉल्व है, अगर मान लो एक आदमी की फैक्ट्री है, ठीक है, अब उसमें तो कोई पब्लिक मनी इन्वॉल्व है नहीं, उसने कैसे लोन वोन ले नहीं रखा, तो उस केस में क्या होगा, ये फिर अगर वहां पर कोई पर्सन है जो कुछ ऐसा ऑफेंस कमिट करता है ब्राइबरी से रिलेटेड या कुछ भी, तो वो फिर इसमें नहीं आएगा। ठीक है? तो पब्लिक सर्वेंट क्या है? इट इज एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, फंक्शनल डेफिनेशन है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कंपनी एम्प्लॉयज। ठीक है? सेक्शन 7 बोलता है पब्लिक सर्वेंट ऑब्टेनिंग या एक्सेप्टिंग अनड्यू एडवांटेज फॉर इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। अब ये जो इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से हो सकती है। क्या मतलब? मतलब ये है कि एक आदमी बिल्डिंग डिपार्टमेंट में है गवर्नमेंट के, अब वो इस बात के भी पैसे ले सकता है कि मैं बिल्डिंग नहीं गिराऊंगा। ठीक है भाई, आपके अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, मैं इसको नहीं गिराऊंगा, इस बात पे पैसे दे दो, मुझे रिश्वत दे दो। और दूसरा ये हो सकता है कि भैया मुझे पैसे दो नहीं तो मैं गिराऊंगा, इस तरह से। या फिर ये कि आप पैसे दे दो तो मैं आपका ये काम कर दूंगा। मान लो आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है ना, वो कहता भाई पैसे दो तो मैं आपको पासपोर्ट रिलीज कर दूंगा, इस तरह से। तो दोनों तरह से हो सकता है, पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में। मतलब जो उसकी ड्यूटी है उसकी इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस, या तो करने के पैसे ले ले या ना करने के पैसे ले ले, ये होता है आपका सेक्शन 7 में हिट हो जाता है। सेक्शन 7A में क्या होता है? सेक्शन 7A बोलता है टेकिंग अनड्यू एडवांटेज टू इन्फ्लुएंस ए पब्लिक सर्वेंट। मतलब इसमें पब्लिक सर्वेंट खुद पैसे नहीं ले रहा, लेकिन मान लो उसकी बीवी है, कोई कस्टम ऑफिसर है, किसी का केस कस्टम का फंसा हुआ है, तो कस्टम ऑफिसर की बीवी उसको अप्रोच करती है जिसका केस फंसा हुआ है कि भैया तुम मुझे डायमंड का नेकलेस दिलवा दो, मैं तुम्हारा केस करवा दूंगी। तो ये 7A में आ जाएगा। ठीक है? तो उसमें एडवांटेज कौन ले रहा है? कोई दूसरा एडवांटेज ले रहा है टू इन्फ्लुएंस ए पब्लिक सर्वेंट। सेक्शन 8 to 10 ये ब्राइब गिविंग ऑफेंसेस हैं, इंक्लूडिंग बाय कमर्शियल। और कई बार क्या होता है कि कंपनी इन्वॉल्व होती है ना, कंपनियां भी रिश्वत देती हैं, तो यहां पर ये सेक्शन 8 to 10 हिट होता है। पेनल्टी क्या है? सेक्शन 7 बोलता है इम्प्रिजनमेंट होती है 3 years to 7 years अलॉन्ग विद फाइन। सेक्शन 13 क्रिमिनल मिसकंडक्ट की बात करता है, इसमें एनहांस्ड इम्प्रिजनमेंट रेंज है। और सेक्शन 9 में कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ड्राइविंग के पब्लिक सर्वेंट, तो कंपनी को तो आप जेल भेज नहीं सकते है ना, तो उसमें क्या होगा? फाइन ही होगा। कुछ केस लॉज देखते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं है क्या चीज। ठीक है? ये जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की डेफिनेशन है ये फंक्शनल है, तो ऑफिशियल्स ऑफ इवन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स विच आर डिस्चार्जिंग ए पब्लिक ड्यूटी आर कवर्ड।
ठीक है। तो अगर कोई प्राइवेट बैंक है, ठीक है, होते हैं ना बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स होते हैं जो कि आरबीआई से रिकॉग्नाइज होते हैं, तो अगर उसका कोई ऑफिसर है, वो भी अगर कोई ब्राइब ले रहा है तो वो भी इसमें कवर्ड है। ठीक है। सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस मनमोहन सिंह का केस है, इसमें क्या बोला कि डिले इन ग्रांटिंग सेक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 19 मस्ट बी टाइम बाउंड एंड कैन नॉट बी यूज टू स्टॉल प्रोसीडिंग्स इंडेफिनेटली। ठीक है। नीरज दत्ता वर्सेस स्टेट में केस में क्या कहा कि डिमांड फॉर इलीगल ग्रेटिफिकेशन कैन बी एस्टैब्लिश थ्रू सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, नॉट डायरेक्ट या प्राइमरी एविडेंस। टू 2018 में एक अमेंडमेंट आई, इसमें क्या कहा कि इट क्रिमिनलाइज्ड ब्राइब गिविंग, मतलब ब्राइब गिविंग को भी, जो रिश्वत देना भी अब अपराध है, उसको भी इन्होंने क्रिमिनलाइज कर दिया। ठीक है। इट नैरोड क्रिमिनल मिसकंडक्ट एंड इट इंड्यूस सेक्शन 17A प्रायर अप्रूवल टू इन्वेस्टिगेट। कुछ टाइमलाइंस हैं, टाइमलाइंस के ऊपर सवाल पूछ सकता है वो। Sanction for prosecution. It is to be decided within reasonable time-bound period per judicial guidelines. Approval to investigate. भाई किसी के अगेंस्ट में भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का चार्जेस लग गया तो अप्रूवल देना पड़ता है। ऑर्डिनरीली इट हैज टू बी गिवन विद इन 3 months, विच इज एक्सटेंडेबल बाय ए फर्दर मंथ। ट्रायल बिफोर ए सिविल जज, द कोर्ट इज टू एंडेवर कंप्लीशन विद इन 2 years, और अपील होगी टू द हाई कोर्ट एज इफ फ्रॉम ए कोर्ट ऑफ सेशन। पेनल्टीज नॉर्मली क्या है, पेनल्टीज इसमें इंप्रिजनमेंट है 3 years to 7 years प्लस फाइन। एक केस स्टडी से समझने की कोशिश करते हैं कि एस इज अ पब्लिक सर्वेंट इन ए गवर्नमेंट राशन ऑफिस। ही टेल्स पी दैट पी इज रूटीन नॉन डिस्क्रिशनरी राशन कार्ड एप्लीकेशन विल नॉट बी प्रोसेस्ड अनलेस पी पेज। वो बोलता है 5,000 रुपये दो तभी आपका राशन कार्ड वाली एप्लीकेशन में प्रोसेस करूंगा। ठीक है। इसने पैसे दे दिए और एप्लीकेशन प्रोसेस हो गई, बाद में कंप्लेंट लॉन्च हो गई। ठीक है। तो पहला तो ये है कि भैया ये व्हाट ऑफेंस हैज एस कमिटेड बाय डिमांडिंग मनी टू प्रोसेस ए रूटीन नॉन डिस्क्रिशनरी एप्लीकेशन। ठीक है। It's a bribery. हाँ, ब्राइबरी में कवर हो जाए। तो बिफोर ए कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस अगेंस्ट एस, व्हाट मस्ट फर्स्ट बी ऑब्टेन्ड, क्या होना चाहिए भाई? आप कोर्ट में केस को ले जाओगे, उससे पहले भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, तो क्या करना है आपको? हाँ, प्रीवियस जी। सेक्शन लेनी पड़ेगी आपको अंडर सेक्शन 19 फ्रॉम द कंपिटेंट अथॉरिटी। इफ एस इज कन्विक्टेड आफ्टर रेगुलर ट्रायल, वेयर डज द अपील लाई? तो अपील जो है वो हाई कोर्ट में A जाएगी अंडर to सेक्शन the 27। High Court under हाँ हाँ, section. तो स्पेशल जज डीम्ड ए कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है। ये टेंडर का केस है। XYZ इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड थ्रू इट्स मैनेजर एम पेज 10 लाख। इन्होंने 10 लाख रुपए किसी पब्लिक सर्वेंट को दे दिया टेंडर लेने के लिए। ठीक है। विद द नॉलेज एंड कन्वीनियंस ऑफ मिस्टर एम। ठीक है। मतलब देगा तो कंपनी तो जाएगी नहीं देने के लिए, देने के लिए तो मैनेजर ही गया पैसे। ठीक है। लेकिन कंपनी ने दिए 10 लाख रुपए पब्लिक सर्वेंट को कि भाई हमारा कोई रोड कंस्ट्रक्शन का टेंडर जो है आप पास कर दो। अब इसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व है, XYZ भी और एम भी। तो क्या क्या लाइबिलिटी होगी? दोनों के लिए अलग अलग केस सेक्शन B. में केस चलेगा। हाँ, हाँ, उसमें सेक्शन 9 में चलेगा और उसमें वो सेक्शन 10 में चलेगा। ठीक, क्योंकि उसको इम्प्रिजनमेंट तो हो नहीं सकती, कंपनी को इम्प्रिजनमेंट तो इंडिविजुअल को ही होगी, है ना। हाउ इज दिस ऑफेंस क्लासिफाइड फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस? cognizable So section C 9. कॉग्निजेबल हो cognizable जाएगा। What section statutory 9 defense if any is cognizable available to under XYZ section infra? 7. इसके पास क्या डिफेंस अवेलेबल है XYZ इंफ्रा के पास? It may plead adequate procedure where in place under the proviso section section 9(1). कई बार क्या होता है, मैं केस बताता हूं आपको। जैसे बहुत सारे ना फॉरेन फॉरेन मल्टीनेशनल्स हैं। अब वो मल्टीनेशनल्स, अब इन सब में कमर्शियल डिपार्टमेंट होते हैं।
तो वो जो कमर्शियल डिपार्टमेंट है उनसे अंडरटेकिंग साइन करवाती हैं वो, कि देखो आप किसी भी डिपार्टमेंट को पैसे रिश्वत नहीं दोगे, अगर आप दोगे तो आपकी जिम्मेदारी है। समझ रहे हो आप? तो मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशंस हैं वो कहते हैं कि वी आर डेड अगेंस्ट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ब्राइबरी। ठीक है भाई, मल्टीनेशनल ने भी काम करना है इंडिया में, है ना? तो वो क्या करती हैं, इससे बचने के लिए अपने एम्प्लॉय से अंडरटेकिंग साइन करवाती हैं कि भैया देखो ऐसा है कि आप ब्राइब ना दे सकते ना ले सकते, है ना? दे भी नहीं सकते आप, है ना? ये नहीं कि आप, जैसे कई बार क्या होता है, बहुत सारा ऑफिसर, बहुत करोड़ों रुपए सैलरी होती है उनकी, और वो काम करवाने के लिए अपनी जेब से भी पैसे दे दें, तो वो भी अलाउड नहीं है। समझ रहे हो आप? ये चीज, वो चीज आ जाएगी इसमें प्रोवाइजर टू सेक्शन 9। अब जो 2018 में क्या अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट में यहां ना, द ऑफेंस अंडर सेक्शन 7 ब्राइबरी बाय पब्लिक सर्वेंट रिक्वायर्स मियर एक्सेप्टेंस ऑफ अनड्यू एडवांटेज। तो अगर आपने कोई अनड्यू एडवांटेज ले लिया तो आपका सेक्शन 7 हिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जरूरी है कि आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सैंक्शन लेनी पड़ेगी। लेना। ठीक है, और जो प्राइवेट बैंक है उनके भी जो ऑफिशियल्स हैं वो भी आपके प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में आते हैं। ठीक है, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, है ना? एक बार आप देख लीजिएगा, और फिर इसको ना, मेरे को लग रहा है कि हम कल इसको और कर लें एक बारी, तो ठीक रहेगा, है ना? यस सर, कल, यस सर, कल कंटिन्यू कर इसको, लेंगे सर कल इसको। खत्म करेंगे इसको, और फिर परसों से अपना आईबीसी वाला पार्ट 3 शुरू करेंगे। आज थोड़ा लेट हो गया मामला, है ना? यस सर। Yes. कोई बात नहीं।